Hello physios, I welcome you all to our channel Physio Vidyapeeth. We are back with our next lecture on EMG and we are going to start abnormal EMG characteristic. Okay, so my name is Vijay Kumar and let's get started. See, among the abnormal EMG characteristic, that is whole, it is called abnormal spontaneous activities. Okay, so we will first of all study about fibrillation potential and positive sharp waves. Okay, more or less they are related to each other and usually they are found in same condition and indicate the same kind of abnormality. Fibrillation potential. Fibrillation are spontaneously occurring action potential from a single nerve fiber. See, this word is of a lot of importance, that these are the action potential that are being fired from a single muscle fiber. Okay, these fire regularly at a rate of 0.5 to 15 hertz with the amplitude of 20 to 200 microvolt and the duration can be 1 to 5 millisecond, and mostly this is, we can say, recorded by concentric needle. Okay, the positive sharp wave is recorded by monopolar electrodes. Okay, so here we are using concentric needle electrode. Fibrillation may rarely be irregular. I have said that usually it is regular, but sometimes it can be irregular also. Fibrillation are biphasic or triphasic. Either it can be having biphasic, that is like this, or another curve is added to this, which can be a triphasic. Okay, so I have drawn biphasic fibrillation potential with the initial positivity. This point is important. I have already explained in my previous lecture that as we move downward the graph is positive and as we move upward the graph is negative. Okay, so you can see initially the graph is moving downward, that is having a initial positivity, that is the main differentiating feature जो कि इसको और एंड प्लेट स्पाइक को अलग अलग करता है. एंड प्लेट स्पाइक का पहला फेज जो है वो कहां जाता है, वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन में जाता है, जो कि एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, और यहां पर नीचे जा रहा है जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और पॉजिटिव फेज में है, which is an important differentiating feature from end plate spike. They are indicative of lower motor neuron disease such as peripheral nerve lesion, anterior horn cell lesion, radiculopathy and much more. Okay, so also in lesser extent they are found in myopathic disease. Okay, such as myositis, dermatomyositis and myasthenia gravis. Okay, so these are some examples along with muscular dystrophy also. Okay, so this is about the fibrillation potential. This is the graph. Okay, so the main feature of graph is that it will be either positive or negative. It will be either biphasic or triphasic with initial positivity. Okay, so our next is positive sharp wave. As the name suggests, this thing or this type of abnormal EMG activity or abnormal spontaneous activity also have its first phase in the positive part, that is you can see in the graph it is first moving downward. Okay, so positive sharp wave are long duration and biphasic potential. Okay, so they are mostly biphasic. Okay, they are long duration and biphasic potential with initial sharp positivity followed by long duration negativity. I will explain you. See, initially the graph is moving downward, that is positive, and it is moving downward very sharply. Okay, it is a straight line moving downward, but when it moves toward upward, that is in the negative deflection, it is wider, that is the negativity is of more duration as compared to the positivity of graph. Okay, so I will explain you again. This is the time period for which the graph is positive and this is the duration for which the graph is negative. So there is an initial positivity followed by a long duration negativity, which give a sawtooth appearance that I have written. See, it give a sawtooth
appearance. Okay, so they also appear regularly with an amplitude of 220 to 200 microvolt. You can see that amplitude is exactly same and duration of 10 to 30 millisecond, and here duration was 1 to 5 millisecond. That is a lot of difference between the duration, as this can be appreciated in the graph. These graphs are very wide as compared to these graphs. Okay, so it is of more duration. The positive sharp wave are the action potential. They are recorded, which are recorded from injured muscle fiber. ये कहां से हो रहा था? इंजर्ड मसल फाइबर से हो रहा था. दैट इज डिनर्वेटेड मसल एट रेस्ट. ऑल्सो यहां पर एंड डाल देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर कोई मसल इंजर है तब भी ये होगा, और अगर कोई मसल डिनर्वेट भी हो चुका है वहां पर भी वो रेस्ट में भी ये फिब्रिलेशन पोटेंशियल देगा. सो इफ समबडी आस्क दैट इन व्हाट कंडीशन positive sharp wave are seen, you can say in condition in which there is injury to muscle, or in condition where the muscle is denervated. Okay, also found in primary muscle disease such as muscular dystrophy and polymyositis, which is again exactly same. So ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत अलग अलग चीजें हैं. they are related to each other. Okay, कई बुक्स में इन दोनों को इकट्ठा ही दिया गया है. So for the better understanding, I have divided it separately so that you can understand it more efficiently. Okay, so this last line is very important. The denervated muscle fiber develop not only hypersensitivity to ACH. So you can just have a question that, sir, the muscle is denervated, then why it is producing these type of extra potentials? Why? What is the reason behind it? The reason is that whenever the muscle is denervated, it develop hypersensitivity to acetylcholine. Acetylcholine के लिए वो बहुत ज्यादा hypersensitive हो जाएगा. Also साथ साथ में क्या होगा? Number of acetylcholine receptor also increase, which lead to depolarization and is responsible for fibrillation and positive sharp waves. Okay, so the reason that why these two are occurring in the muscles, that is the abnormal muscles which is having any kind of disease or any kind of injury or any denervation effect. Okay, so they are occurring because of hypersensitivity to acetylcholine and increase in the number of receptor. So this was about the fibrillation potential and positive sharp wave. So these are the graphical representation of fibrillation potential and positive sharp wave, and the characteristic sound on the loudspeaker for the fibrillation potential is a clicking sound, that is a high pitch click sound, and for the positive sharp wave it is a dull thud sound. Now we are going to study about some other abnormal EMG characteristics. Okay, so first is the myotonic discharge and the other one is CRD, also referred to the complex repetitive discharge. Okay, so first is myotonic discharges. The name is explaining each and everything. So here there occur a myotonia which can be either clinical or subclinical. Now you will be wondering that what is myotonia? Myotonia is the condition in which there occur a impairment in the relaxation of the muscle after any activity. So once there is any muscular activity or the contraction, after it normal muscle get relaxed, but in myotonia there is some problem in the relaxation, due to which it takes a slightly longer time to get relaxed, which produce some potentials, and that potential are called the myotonic discharges. The action potential of the muscle fiber firing for prolonged period, see, prolonged period after the external excitation are characteristics of myotonic discharge. पहली लाइन में ही पता लग गया कि ये मसल की एक्सटर्नल एक्साइटेशन के बाद एक प्रलॉन्ग एक्टिविटी देगा. और क्यों देगा? क्योंकि मायोटोनिया हो रखा है ना.
द एक्शन पोटेंशियल वैक्स एंड वेन इन एम्पलीट्यूड। वैक्स एंड वेन का क्या मतलब, बढ़ता है फिर कम हो जाता है। यू कैन सी इन द ग्राफ, इतने एरिया में बढ़ा फिर कम हुआ एंड अगेन इधर को जाते हुए फिर बढ़ रहा है। द एक्शन पोटेंशियल वैक्स एंड वेन इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ abnormality in membrane of muscle fiber। और मायोटोनिया में एक्चुअल में जो डिफेक्ट आ रहा है वो मसल की मेम्ब्रेन पे आ रहा है, जिसके चलते वो एक्चुअल में एक अच्छे तरीके से रिलैक्स नहीं हो पा रहा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मायोटोनिक डिस्चार्ज रेंजेस बिटवीन 40 to 100 हर्ट्ज which is regular and rhythmic। okay, the variation in frequency give rise to a sound like dive bomber। okay, जो यहां पर जो नॉइस आएगी ईएमजी के स्पीकर के ऊपर वो एक डाइव बॉम्बर की जैसे होगी। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ नीडल इलेक्ट्रोड दे कैन बी ऑफ टू टाइप। ओके, सो यहां पर इसके दो टाइप्स बनाए गए, जिसमें से पहला है पॉजिटिव वेव्स और अगला है ब्रीफ स्पाइक्स। ओके, सो पॉजिटिव वेव, दीज आर सिमिलर टू द पॉजिटिव शार्प वेव। नाम से ही सब कुछ हमें याद करना है। पहला इन्होंने कौन सा बोला, पॉजिटिव वेव, और पॉजिटिव वेव से आपको क्या याद आना चाहिए, पॉजिटिव शार्प वेव, दैट इज दे आर एट्रीब्यूटेड टू द इंजरी टू द मसल फाइबर। ओके, सो इन्होंने सिंपली कहा कि ये जो पॉजिटिव वेव है ये कुछ कुछ पॉजिटिव शार्प वेव जैसी है, जो कि मस्कुलर इंजरी, दैट इज इंजरी टू द मसल फाइबर के चलते प्रोड्यूस हो रहा था। एंड फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव वेव इन मायोटोनिया वेरीज एज द डिस्चार्ज कंटिन्यू। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है वो एक वैक्सिंग एंड वेनिंग होगा, जिसके चलते फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। सिमिलरली इन ब्रीफ स्पाइक इन्होंने क्या कहा, दे आर बाईफेसिक और ट्राइफेसिक। फिर इन्होंने पोटेंशियल बता दिया कि 20 से 300 माइक्रोवोल्ट तक होगा एंड इट रिजेंबल टू द फिब्रिलेशन पोटेंशियल। देखो, एक अच्छे सीक्वेंस में पढ़ना ही सबसे अच्छी बात होती है। मैंने आपको ये दोनों भी इकट्ठे कराए थे और जो इनकी रिसेम्बलेंस है वो भी मैं एक साथ में ही ले आया। सो ये पॉजिटिव वेव किसके जैसा था, पॉजिटिव शार्प वेव के जैसा, जो कि इंजरी के चलते था मसल फाइबर की। फिर यहां पर जो है वो किसके जैसा है, फिब्रिलेशन पोटेंशियल के जैसा है। एंड दे अकर आफ्टर वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो दे वैक्स एंड वैन इन सिमिलर टू those induced mechanically। okay, the after discharge correspond to the low power of relaxation which is clinically evident। okay, so वही बात एंड में कि ये जो आफ्टर डिस्चार्ज दैट इज नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके चलते हैं, ड्यू टू द पुअर रिलैक्सेशन ऑफ मसल। फिर लास्ट में दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मायोटोनिक डिस्चार्जेस आर फाउंड इन मायोटोनिया डिस्ट्रोफिका, मायोटोनिया कॉन्जेनाइटा एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे अच्छा ये ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी मिलता है। ओके, फिर और काफी कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे पॉलीमायोसाइटिस एंड एसिड माल्टेस डेफिशिएंसी के चलते भी ये होता है। मायोटोनिक डिस्चार्जेस में बी सीन विद और विदाउट क्लिनिकल मायोटोनिया, मतलब कि क्या पता जो मायोटोनिया है वो अभी सब क्लिनिकल है, मतलब ईएमजी पे तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई दिक्कत है, लेकिन उसके क्लिनिकल सिम्टम्स अभी पेशेंट में नहीं आए हैं। सो मायोटोनिक डिस्चार्जेस को अगर हम समराइज करें तो ये क्या है, दीज आर द डिस्चार्जेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन द मसल ड्यू टू पुअर रिलैक्सेशन। ओके, सो रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं हो रहा, जिसके चलते एक लॉन्ग ड्यूरेशन लग रहा है रिलैक्स होने के लिए। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो वैक्सिंग एंड वेनिंग जरूर करेगा। फिर बता दिया कि ये दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव वेव जो पॉजिटिव शार्प वेव के जैसा है, और ब्रीफ स्पाइक जो कि फिब्रिलेशन पोटेंशियल के जैसा है। द कॉज ऑफ दिस इज ड्यू टू द इंजरी और मायोटोनिया इटसेल्फ, और हियर आल्सो द कॉज इज मायोटोनिया। और एंड में हमने क्या बताया कि कौन कौन सी कंडीशंस में हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द मायोटोनिक डिस्चार्जेस। You can see the graph at the end of this part. I will be adding a picture for you for better graphical representation. Okay, so that you can understand it very well. So you can see the graph is increasing
then decreasing. That is the waxing and waning nature. Next one is fourth is complex repetitive discharge. Here also the name is giving you a lot of information. First is complex, second is repetitive, which means the discharges are repeatedly occurring. Okay, so we can understand it that it refer to repetitive and synchronous firing of group of muscle. Synchronous मतलब इकट्ठा firing of group of muscle. एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो 50 माइक्रोवोल्ट से 1 मिलीवोल्ट तक जाएगा और ड्यूरेशन वो 50 से 100 मिलीसेकंड तक जाएगा. इंटायर सीक्वेंस रिपीटेड एट स्लो और फास्ट रेंजिंग बिटवीन 5 एंड 100 हर्ट्ज. सो अभी ये बोल दिया कि जो सीक्वेंस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का वो रिपीट हो रहा है और उसकी जो रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक वेरी करेगी. सो देयर यूनिक रेपिटेटिव पैटर्न बियर अ सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस टू मायोटोनिक डिस्चार्ज. यानी कि ये कुछ थोड़ा मायोटोनिक डिस्चार्ज के जैसा रिसेम्बलेंस करेगा, जिसके चलते हम इसे स्यूडो मायोटोनिक डिस्चार्ज भी कहते हैं. ओके, सो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये वैक्सिंग एंड वेनिंग कैसे हो रहा है. इन दिस कंडीशन जो इन्होंने बोला ना कि इट इज ड्यू टू द फायरिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स. ओके, ग्रुप ऑफ मसल्स. तो वहां पर जो एक मसल फाइबर है वो पेस मेकर की तरह एक्ट करेगा. और पेस मेकर का काम क्या होता है हार्ट में कि वो पहले अपने में एक एक्टिविटी इंड्यूस करता है, फिर बाकी पूरे हार्ट में एक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है. सो यहां पर भी वही होगा. दिस डू नॉट हैव वैक्सिंग एंड वेनिंग कैरेक्टरिस्टिक. सी, इन्होंने बता दिया कि ये इसके जैसा तो है लेकिन यहां पर कोई वैक्सिंग एंड वेनिंग नहीं होगा. सिंगल फाइबर ईएमजी रिवील्ड दैट द कॉम्प्लेक्स रेपिटेटिव डिस्चार्ज रिजल्ट फ्रॉम इफेक्टिव एक्टिवेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर. मतलब यहां पर एकदम से एक बर्स्ट में एक्टिविटी चल पड़ेगी मसल फाइबर्स में. इट कंसिस्ट ऑफ 10 और मोर डिस्टिंक्ट यूनिट पोटेंशियल. 10 यूनिट से यहां पर पोटेंशियल आ रहा है. एंड फायरिंग अकर इन सेम ऑर्डर एज द डिस्चार्ज री अकर रिपीटेडली. की फायरिंग रिपीटेडली चलती रहेगी. सी, अब जो है वो मेन पॉइंट आ रहा है वो है द वन फाइबर एक्ट एज पेसमेकर. पहला एक फाइबर पेसमेकर की तरह एक्ट करेगा विच इनिशिएट द बर्स्ट ड्राइविंग इफेक्टिकली. ओके, सो पहले वो पेसमेकर में एक्टिविटी आई, फिर वो सारे के सारे मसल फाइबर में एक एक्टिविटी ला देगा. और पहले मान लो ये पेसमेकर में एक्टिविटी आई, फिर यहां वाले 3 फाइबर में एक्टिविटी आई, पहले इसमें फिर इसमें और फिर इसमें. और जब इसमें एक्टिविटी आएगी, जब ये खत्म होने वाली होगी, ये फिर से पेसमेकर को स्टिमुलेट करेगा और ये सीक्वेंस चलता रहेगा, जिसके चलते इसका नाम बना कॉम्प्लेक्स रेपिटेटिव डिस्चार्ज. यू कैन सी one fiber act as pacemaker which initiate the burst driving emphatically, and it is seen in a wide variety of myopathies such as polymyositis, muscular dystrophy, and chronic denervating condition such as motor neuron disease. Okay, so these are some examples of condition in which this occur. So you can see the graph, no waxing and waning and repetition of same type of graph is occurring, which is the characteristic appearance of complex repetitive discharge. Okay, so अब दोनों चीजें आपको समझ आ गया. मायोटोनिक डिस्चार्ज जिसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, पुअर रिलैक्सेशन ऑफ मसल आफ्टर द एक्सटर्नल एक्साइटेशन. वाइल कॉम्प्लेक्स रेपिटेटिव डिस्चार्ज में क्या है, यहां पर एक रेपिटेशन में एक्टिविटी होगा ऑफ अ लॉट ऑफ मसल फाइबर. 10 यूनिट होते हैं. एक फाइबर एक्ट करेगा पेसमेकर की तरह, जो कि बाकी फाइबर्स को भी एक्टिवेट करेगा, और जो लास्ट फाइबर ऑफ एक्टिवेशन होगा वो फिर से पेसमेकर को एक्टिवेट कर देगा, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा, which give us complex repetitive discharge. Okay, so this was about these two abnormal EMG characteristics. So these are the graphical representation of myotonic discharge and complex repetitive discharge, and the sound for myotonic discharge is
like a dive bomber, while for the complex repetitive discharge is a machinery like sound. Our remaining abnormal potential are fasciculations and myopic discharges, neuromyotonia, and last is cramp potential. Okay, so fasciculation ये क्या है? It is the spontaneous discharge from the muscle which are whole the part of motor unit or a part of motor unit. So these are spontaneous contraction of muscle fiber जो कि बिलोंग कर रहे हैं होल और अ पार्ट ऑफ मोटर यूनिट को. सो दीज अकर रैंडमली, इरेगुलरली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रेट. यहां पर जो रेट है वो 1 से 500 पर मिनट है. दैट इज अ वेरी we can say slow rate. Okay, so size and the shape of fasciculation depend upon motor unit. Obviously अगर कोई मोटर यूनिट बड़ा है तो मतलब काफी ज्यादा मसल कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो साइज में भी फर्क आएगा ही आएगा. और साथ साथ में इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड फ्रॉम द मोटर यूनिट. कि जो हमारा इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट है क्या वो मोटर यूनिट के आसपास है या उससे थोड़ा दूर है. ओके, सो देयर दीज मे हैव अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल और अबनॉर्मल मोटर यूनिट पोटेंशियल. ये एक दिक्कत है कि देखने में ये कभी कभी नॉर्मल भी लग सकता है. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर? नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट. बट इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्लोअर फायरिंग रेट. तभी मैंने वहां पर बोला था कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नॉर्मल में जो फायरिंग रेट है वो बहुत फास्ट है, लेकिन यहां पर जो फायरिंग रेट है वो वेरी स्लो है. ओके, जो कि पर मिनट में बताया गया है, बाकियों में हमने पर सेकंड करके लिखा है. ओके, सो डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज अकर इन नॉर्मल इंडिविजुअल एज वेल एज इन वाइड वैरायटी ऑफ डिसीजेस. कई बार ये नॉर्मल भी मिलता है और कई बार ये हमें डिसीज सच एज ALS, amyotrophic lateral sclerosis, रूट कंप्रेशन एंड एक्सोनल न्यूरोपैथी में भी हमें ये मिलता है. डिफरेंशिएशन बिटवीन बिनाइन एंड पैथोलॉजिकल फैसिकुलेशन इज डिफिकल्ट. बिनाइन मतलब अभी वो थोड़ा सा मतलब कि सब क्लिनिकल है, कोई एक हमें एक दिक्कत नहीं दे रहा है. सो बिनाइन एंड पैथोलॉजिकल में डिफरेंस क्या है कि बिनाइन मतलब अभी वो हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, दैट इज नॉर्मल के जैसा. ओके, सो नॉर्मल और पैथोलॉजिकल में क्या डिफरेंस है अभी मैंने आपको बताया. वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द रेट ऑफ द फायरिंग विच इज स्लोअर इन फैसिकुलेशन एंड नॉर्मल में वो हाई होता है. इज डिफिकल्ट हाउएवर बिनाइन फैसिकुलेशन हैव फास्टर रेट. मतलब कि नॉर्मल में जो है वो एक फास्टर रेट हो रहा है. बिनाइन का मतलब सब क्लिनिकल नहीं, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिनाइन इन्होंने लिखा है कि वो नॉर्मल है. ओके, सो इट इज नॉट सब क्लिनिकल, बिकॉज अगर हम सब क्लिनिकल बोल रहे हैं तो मतलब कोई दिक्कत है जो कि एक गलत चीज है. सो यहां पर इन्होंने बताया है कि नॉर्मल और अब नॉर्मल को हम रेट के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन मसल ट्विचिंग में बी सीन इन सम पेशेंट. यस, कई बार हम भी अगर कोई वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब भी कुछ एक वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है अलग से, वो अलग बात है. लेकिन यहां पर भी अगर कई पेशेंट हैं सच एज क्रॉनिक न्यूरोजेनिक लीजन के, अगर वो कोई वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन करे तब भी ये चीज होती है. सो ड्यूरिंग वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन मसल ट्विचिंग अकर इन chronic neurogenic lesion, okay, which is attributed to enlargement of motor unit and should not be confused with true fasciculation. Okay, so इसको हम fasciculation नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि कई बार हम भी अगर कोई वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब थोड़ी बहुती जो है मसल की ट्विचिंग होती है. देयर आर अ लिटिल बिट ट्विचिंग ऑफ द मसल फाइबर, जिसको हमने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है. और ये चीज क्रॉनिक न्यूरोजेनिक लीजन्स में भी हो सकता है. सो उसको हम ट्रू फैसिकुलेशन नहीं बोलेंगे. सो फैसिकुलेशन में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले इट अकर रैंडमली एंड इरेगुलरली. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इसका रेट जो है वो वेरी स्लो है और इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर फ्रॉम द नॉर्मल इज
दिस पॉइंट। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि कब कब ये मिलता है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में मिलेगा, रूट कंप्रेशन में मिलेगा। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है, सच एज क्रॉनिक न्यूरोजेनिक लीजन का कोई पेशेंट है, उनमें थोड़ी बहुत ही कुछ ट्विचिंग होती है, जिसको हमने इसके साथ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ fasciculation, okay, which is more or less related to the normal motor unit potential. Now we will be focusing on myoclonic discharges. Okay, so first of all you need to understand what is myoclea. It is the twitching of the eyelids. So ये mostly कुछ facial muscle के related है. So it is the spontaneous muscle potential which are associated with fine worm like quivering of the facial muscle which is called the myoclonic discharges. कई बार हमारी जो आंख है वहां पर हमें ट्विचिंग मिलती है ना, सो दिस कैन अकर नॉर्मली ऑल्सो, ओके, विच विल बी द myoclonic discharge ऑन EMG। ये देखो लिख रखा है these reveal normal motor unit potential which fire in fixed pattern and rhythm and occur in the burst of 2 to 10 potential and firing rate is 20 to 40 to 60 hertz and these bursts reoccur at regular interval of 0.1 to 1 second. सिंपल। सो myoclea में अब तक हमने क्या पढ़ा कि इट इज रिलेटेड टू द ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, जो कि मोस्टली आईलिड और फेशियल मसल में होता है। थोड़ी थोड़ी वॉर्म लाइक मूवमेंट हमें फील होती है। ओके, सो डेफिनेटली ये कुछ नॉर्मल के जैसा है। Also, this can be differentiated from the fasciculation by their distinctive pattern. Obviously, you can see the graph of myoclonic discharge and also you can see the fasciculation graph. Okay, so it is very different. Okay, so facial myoclea is found in मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इन्होंने क्या बोला कि ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकता है, सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन स्टेम न्यूप्लाज्म, ओके, पॉलीरेडिकुलोपैथी एंड फेशियल नर्व पाल्सी। ओके, सो myoclonic discharges कैन बी नॉर्मल और अबनॉर्मल। नॉर्मली कभी कभी ट्विचिंग होती है, लेकिन अगर बिना किसी कारण के ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो डेफिनेटली कुछ दिक्कत है, जो इनमें से कोई भी हो सकता है। एंड यू कैन सी द ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ इसका zoomed इन वर्जन है। ओके, सो दिस इज अबाउट द myoclea और द myoclonic discharges. ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड द न्यूरोमायोटोनिया। इट इज अगेन वेरी सिंपल। यहां पर क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होती रहेगी, मतलब जो नर्व स्टिमुलेट हो रही है वो स्टिमुलेट ही रह रही है। तो हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या पढ़ा है कि दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज सेकंड न्यूरॉन, बीच वाली स्पेस क्या है, साइनेप्स। सो फर्स्ट वाले से क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन नेक्स्ट वाले को स्टिमुलेट करता है, और जो भी एसिटाइल कोलिन बच जाता है उसको एसिटाइल कोलिनेस्टरेस क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। लेकिन अगर वहां पर एंटीकोलिनेस्टरेस है जो कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेस को नष्ट कर देगा, मतलब इट विल बी डिग्रेडिंग द एसिटाइल कोलिनेस्टरेस, सो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन विल इंक्रीज एंड देयर विल बी अ persistent contraction. It refer to the continuous motor unit potential. एक continuous motor unit potential मिलेगा which have a firing rate of 100 to 300 hertz which continue for long runs and reoccur in burst. Okay, so ये लंबे समय के लिए रहेगा और burst में इसकी reoccurrence हो सकती है। It is found in syndrome of continuous muscle fiber activity, that is एंटीकोलिनेस्टरेस पॉइजनिंग, टेटनी एंड स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ओके, सो कई बार इस्चीमिया होता है, वो भी इस चीज को ज्यादा, वी कैन से दैट इट इज डिग्रेडिंग इट मोर। ओके, एंड एट लास्ट these are occur in peripheral nerve irritation during surgery and serve as a valuable guide of possible nerve damage. ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार फिर से पढ़ते हैं, these are
These occur होगा और ना बोल दे। These occur in peripheral। खड़ा न्यूरोमायोटोनिया द्वारा बोल रहे हैं ना काट करना है थोड़ा देख लिया कर यार मैं तो नाम की जगह these करता हूँ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूरोमायोटोनिया। यहाँ पर क्या होगा, एक कंटिन्यूअस मोटर यूनिट पोटेंशियल मिलेगा, और वो क्यों मिलेगा हम अभी पढ़ेंगे। इट रेफर टू द कंटिन्यूअस मोटर यूनिट पोटेंशियल, यू कैन अंडरलाइन दिस पॉइंट, okay, continuous motor unit potential which is firing at a rate of 100 to 300 hertz which continue for long run, also it can reoccur in burst। अब ये चीज क्यों हो रही है इसको समझते हैं। जैसे कि हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ा है कि एक पहला न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक होता है, एक बाद वाला जो होता है सेकंड वन इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, सो दोनों न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते थे, साइनेप्स कहते थे। सो पहले न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन निकलता था और वो दूसरे वाले को स्टिमुलेट करके एक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था। सो अगर कुछ ऐसा हो जाए जो एसिटाइलकोलिन यहां पर है वो बढ़ जाए, या उसको डिग्रेड करने वाला एसिटाइलकोलिन एस्टरेज खत्म हो जाए, तो क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक स्टिमुलेशन विल बी इंक्रीज एंड देयर विल बी अ कंटिन्यूअस motor activity। okay, it is found in syndrome of continuous muscle fiber activity, then anticholinesterase poisoning देखो, then टेटनी में भी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में भी हमें ये मिलेगा। और इस्चीमिया से ये चीज और बढ़ सकती है। इस्चीमिया इज द एग्रेवेटिंग फैक्टर फॉर दिस एंड दीज अकर इन पेरिफेरल नर्व इरिटेशन ड्यूरिंग सर्जरी, ऑल्सो इट सर्व एज द वैल्यूएबल गाइड फॉर अ पॉसिबल नर्व डैमेज। और ग्राफ से भी हमें दिख रहा है कि एक कंटिन्यूअस मस्कुलर एक्टिविटी इज occurring, so we can see in the graph there is a lot of muscular activity which is occurring in a continuous pattern, also this pattern can be in bursts as we have studied earlier। okay, so now at last we will be moving toward the cramp potential। okay, so it is related to the cramps which occur in our body due to dehydration। okay, in cramp spontaneous discharge of potential occur at a rate of 40 to 60 hertz, okay, with abrupt onset and cessation। क्रैम्प्स में भी तो ऐसी होता है, एकदम से क्रैम्प आता है फिर चले जाता है। देयर इज अ अब्रप्ट ऑनसेट एंड सीजेशन। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पोटेंशियल आर रिक्रूटेड एज क्रैम्प डेवलप एंड ड्रॉप एज इट सबसाइड। जब क्रैम्प डलता है तब धीरे धीरे जो है मसल ज्यादा क्रैम्प करते हैं और एक्टिविटी बढ़ रही है, और जब कम होता है तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दैट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पोटेंशियल आर रिक्रूटेड एज क्रैम्प डेवलप एंड इट ड्रॉप आउट एज इट सबसाइड। इट अकर इन सॉल्ट डिप्लीशन, क्रॉनिक न्यूरोजेनिक एट्रोफी, मिक्सिडिमा, प्रेगनेंसी, यूरेनिया एंड ऑल्सो इट अकर इन नॉर्मल इंडिविजुअल। सो जो क्रैम्प पोटेंशियल है वो भी नॉर्मल इंडिविजुअल में भी हो सकता है, और अब नॉर्मल जैसे कि जिसको कोई क्रॉनिक न्यूरोजेनिक एट्रोफी है वहां पर भी हमें ये मिल सकता है। ओके, सो दिस वाज होल अबाउट द abnormal EMG patterns। ओके, सो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ fasciculation, myomic discharges, neuromyotonia and cramp potential। okay, and the characteristic sound are low pitch thumb sound or corn popping sound for fasciculation, while for myomic discharge it is like a marching of soldiers, and for neuromyotonia it is a pinging sound which is heard। okay, and one thing is important in the cramp potential graph, that the initial part is represented by the voluntary contraction, and after that proper relaxation do not occur and we can see the cramp potentials। okay, and the sound for cramp potential is not, we can say, much prominent। okay, so that is why there is not a particular word for its characteristic sound। okay, so you need to understand these things in a very precise manner। okay, so fasciculation में क्या था, एक मोटर यूनिट का पूरा हिस्सा या उसका कोई थोड़ा सा हिस्सा
जो है वो इसमें पार्ट कर रहा था। ओके, सो नॉर्मल और अबनॉर्मल में क्या फर्क था? क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ काफी नॉर्मल के जैसा है। इट इज रिसेंबलिंग अ नॉर्मल मोटर यूनिट पोटेंशियल। सो हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे? बाय द रेट। ओके, सो रेट इज स्लोअर इन fasciculation. Then myoclonic में क्या था? It is related to normal individual, that is normal eye twitching, but these things can occur in abnormal individual as I have explained the pathologies. Then we come to study about the neuromyotonia. There is a continuous motor activity, so definitely there will be a continuous motor potential, that is continuous firing of postsynaptic neuron. So that was neuromyotonia. And cramp potential were very easy, which can be either in normal or abnormal individuals. Okay, with this we are completing the abnormal EMG patterns. Okay, so I think now there will be 1 or 2 more lectures on EMG, and you need to understand each and everything very accurately and in a very precise manner. Okay, so till then you keep on studying. Thank you to one and all.